وہ ہے، لکھ لیں آپ، میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے. آمین. میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے. آمین. کبھی آپ نے ایسی دعا کی ہو کہ خداوند میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے؟ ہم انی روزی نہیں ہوندے جنہیں ہم نے منصوبے بنائے تھے، اس لیے ہم خوش نہیں ہیں، کیونکہ خدا آپ کو اتنا ہی دے گا جتنی آپ کی ضرورت ہے. ہاللویہ. خدا اتنا ہی آپ کو دے گا جتنی آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ آپ کا ہیونلی فادر ہے. وہ آپ کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. تو اس میں کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ آپ اس بات کے لیے اگری ہیں، آپ خدا کی اس مرضی کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہتے ہیں. خدا مجھے میری ضرورت کے مطابق مزدوری دے، اتنی ہی مجھے روزی دے. آئیں اس بات پر غور کریں گے. امثال کی کتاب اس کا 30واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے 9ویں آیت تک پڑھتے ہیں. مقدس سلیمان کی معرفت لکھا گیا خدا کا زندہ کلام. امثال کی کتاب اس کا 30واں باب 7ویں آیت سے 9ویں آیت تک پڑھتے ہیں. خدا کا بندہ بیان کرتا ہے، میں نے تجھ سے 2 باتوں کی درخواست کی ہے، میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریغ نہ کر. بطالت اور دروگوئی کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند. میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے. ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے، یا مبادہ محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے سے ہم سبوں پر خدا تعالیٰ کی برکت ہو. آمین. ہاللویہ. آمین. بڑا چھوٹا کیا تسی آمین دے کوئی پیسے تو نہیں لگتے، فری ہے نا. سارے بولیں گے آمین. یہ ایک لفظ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. اس لیے جب بھی آمین بولا جاتا ہے تو پھر چھوٹا آمین نہیں کہنا، آمین پھر اپنے بڑا کرنا ہے. آمین. سو آئیں اس بات پر غور کرتے ہیں. خدا کا بندہ مقدس سلیمان، خدا سے 2 اس نے ریکویسٹ رکھی ہیں، 2 اپلیکیشن ہیں، 2 درخواستیں ہیں. ان درخواستوں پر غور کیجئے گا. ان درخواستوں کا بہت عظیم مقصد ہے، اور ایسی درخواستیں خدا پسند کرتا ہے. کتنی درخواستیں اس کی؟ 2 درخواستیں ہیں، اور ان درخواستوں میں ہی سب کچھ ہے. آمین. ان درخواستوں کے پیچھے ایک بڑا بھید ہے. ہماری تو لسٹیں بنی ہوئی ہیں درخواستوں کی، لیکن اس نے درخواستوں کو سننے والے کو صرف 2 ہی درخواستیں دی ہیں، اور یہ 2 درخواستیں اس کی پوری لائف کے لیے برکت کا سبب بنی ہیں. آمین. ہاللویہ. میں جب یہ دیکھ رہا تھا، کیونکہ ان درخواستوں کے اندر بہت خاص باتیں کہہ دی گئی ہیں. میں نے تجھ سے 2 باتوں کی درخواست کی ہے، میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریغ نہ کر. آمین. ان درخواستوں کا تعلق تب تک ہے جب تک وہ اس روح زمین پر ہے. آمین. ہاللویہ. یہ درخواستیں اس کی پوری زندگی کا حصہ بنیں گی، اور خدا ایسی درخواستوں کو پسند کرتا ہے. آمین. ہاللویہ. ان 2 باتوں کو مجھ سے دریغ نہ کرنا، وہ کیا درخواست ہے؟ سنیں. پہلی بات، بطالت اور دروگوئی کو مجھ سے دور کر دے.
ये दो बड़ी अहम बुराइयां हैं, ये दो बड़े इब्लीस के हथियार हैं। एक हमाकत है और दूसरा झूठ, धोखाधड़ी करना। वो इनसे बचना चाहता है। कभी आपने ये दरखास्त की, खुदा मुझे झूठ की आदत से बचा ले? खुदा से आपने कभी कहा, खुदा मुझे बदी की रूह से बचा ले? कभी आपने खुदा से दरखास्त की, खुदा मुझे बुरे ख्यालों से बचा ले? हम तो बहते जा रहे हैं ऐसे कामों में, खो गए ऐसे कामों में। लेकिन वो खुदा से अलहदा नहीं होना चाहता, इसलिए उसने खुदा की मदद को इस दरखास्त में से मांगा है। आमीन। किससे मदद मांग रहा है? और खुदा ऐसी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि इस मदद के पीछे खुदा के साथ मोहब्बत है। आमीन। जो लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं वो सुलेमान की तरह हद में रहना चाहते हैं, इतदाल में रहना चाहते हैं, क्योंकि इतदाल में जो जिंदगी गुजरती है वही बाइस से बरकत होती है। हद से बढ़कर कोई भी चीज जो है वो आपको खुदा से अलहदा कर सकती है। इसलिए वो खुदा से अलहदा नहीं होना चाहता, वो खुदा की हजूरी में रहना चाहता है, वो खुदा की पसंदीदा जिंदगी गुजारना चाहता है। क्या आज हम खुदा की पसंदीदा जिंदगी गुजार रहे हैं? जो कुछ खुदा चाहता है क्या आप वो कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो आज सुलेमान के इस बातों पर गौर कीजिएगा, क्योंकि खुदा के पसंद के साथ आप चलेंगे तो कोई चीज आपको उसकी बरकतों से रोक नहीं सकती, क्योंकि वो आपको प्यार करता है। हालेलुया। हम हमेशा अपनी पसंद की एक लिस्ट खुदा को दे देते हैं। सुबह शाम एक ही लिस्ट होती है और उसमें खुदा की पसंद का कोई काम नहीं होता। लेकिन इस शख्स ने, इस खादम ने, इस नबी ने अपनी पसंद नहीं बल्कि खुदा की पसंद को आगे रखा है कि मुझे इन दो बुराइयों से खुदा तब तक बचाए रखना जब तक मैं इस रूहे जमीन पर हूं। और आप देख सकते हैं कि खुदा ने उन्हें कितनी सरफराजी दी है। खुदा ने सुलेमान से कहा कि तू मुझसे मांग क्या चाहता है, और उसने खुदा से क्या मांगा? उसने खुदा से कहा, खुदा मुझे हिकमत से नवाज दे। क्यों? उस हिकमत का तल्लक भी खुदा की लोगों के साथ है, उसका अपनी जात के साथ नहीं। आज हम हिकमत को मांगते हैं अपने इल्म को बढ़ाने के लिए। बाइबल कहती है जब इल्म बढ़ जाता है तो गुरूर पैदा करता है। लेकिन इस खादम ने, इस नबी ने इल्म, हिकमत किस लिए मांगा? ताकि वो खुदा के लोगों की बेहतर तौर पर रहनुमाई कर सके, क्योंकि हिकमत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये हिकमत दुनियावी नहीं है, ये विजडम ऑफ गॉड है, क्योंकि आप दुनिया की हिकमत के जरिया से खुदा के काम नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया की हिकमत बातिल है। आपको खुदा के कामों के लिए खुदा की हिकमत की जरूरत है। आमीन। इसलिए उन्होंने ऐसी दुआ की, उस वक्त भी मांगा उन्होंने। और खुदा ने क्या कहा? तूने मुझसे दौलत नहीं मांगी, इज्जत नहीं मांगी, शोहरत नहीं मांगी, ये मैं तुझे गिफ्ट में दे रहा हूं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब आप खुदा की पसंद की चीजें मांगते हैं तो खुदा तो पहले ही से ही आपकी पसंद जानता है। ज़बूर में क्या लिखा है? 34 ज़बूर में, खुदावंद में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। आमीन। सारे बोले। क्या करना चाहता है खुदा? दिल की मुरादें, आपके दिल की मुरादों को पूरा करना चाहता है। क्यों तुसी इन्ने परेशान हो? तुसी सिर्फ खुदा दे नाल चलना शुरू करो। इस साल कहे खुदा जितना तू मुझे बढ़ाएगा मैं उतना ही बढ़ूंगा। आमीन। उससे बढ़ना मैं नहीं चाहता, क्योंकि जब आप हद से बढ़ना चाहते हैं तो आप खुदा से दूर चले जाएंगे और आप पहले से भी नीचे आ जाएंगे, क्योंकि खुदा आपको बढ़ाएगा। आमीन। तो खुदा का बंदा इस बात को बयान कर रहा है, दूर कर दे और मुझको
ना कंगाल कर ना दौलतमंद। वो जानते हैं कि कौन कंगाल बनाता है, कौन मुझे दौलतमंद बना सकता है, कौन मुझे सरफराज कर सकता है। वो एक ही ज़ात है, वो खुदावंदों का खुदा है, वो जिंदा यहोवा खुदा है। वही इंसान को पस्त करता है, वही उसको सरफराज करता है, वही उसे खोर से उठाता है और बुलंदियों पर बैठा लेता है। हमारी सरफराजी जो है वो खुदा के हाथों में है। खुदा का बंदा दाऊद क्या बयान करते हैं, इनके वालिद क्या बयान करते हैं कि सरफराजी न मशरक से, न मगरब से, न शमाल से, न जनूब से, बल्कि खुदावंद की तरफ से है। जब खुदावंद की तरफ से सरफराजी है तो फिर हम क्यों इतना परेशान, क्यों भागते रहे, क्यों इतना अपने आप को थका रहे हैं, क्यों खुदा से दूर जा रहे हैं? क्योंकि खुदा वक्त के साथ आपको सरफराजी देता है। उसकी सरफराजी का एक वक्त है। खुदा अपने वादों को कभी भी भूलता नहीं है, हम उसको छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, इस साल इस बात को आपने याद रखना है, मेरी सरफराजी मेरे खुदावंद के हाथ में है। सारे बोले, मेरी सरफराजी मेरे खुदावंद किसके हाथ में है? किसी इंसान के हाथ में नहीं है जो आपको कहेगा नहीं 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 तू इंज ही रहे। अगर इंसानों के हाथ में ये चीजें रहे तो कोई इंसान किसी दूसरे को जीने ना दे। ये खुदा के हाथ में है और हमें खुदा के हाथों में रहना है। और खुदा का बंदा भी खुदा के हाथों में ही रहना चाहता है, वो उसकी गुर्बत में रहना चाहता है। इसलिए वो कहता है, ना मुझे कंगाल कर ना दौलतमंद। आज कितने लोग दौलतमंद बनना चाहते हैं, जबकि खुदा ने पहले ही आपको बड़ी दौलत से नवाज रखा है। कोई जानता है वो दौलत क्या है? खुदा का कलाम, वो दौलत, वो बरकत, वो फतह आपके पास हमेशा की जिंदगी है। आमीन। सब बोले, मेरे पास क्या है? बहुत कम का है, अपने ऊंची आवाज से कहे, मेरे पास क्या है? हमेशा की जिंदगी। तो जिसने आपको हमेशा की जिंदगी दी है वो आपकी बदनी सारी जरूरतों को जानता है। हालेलुया। आपको हर दिन खुश रहना है, क्योंकि आप इस बात को जान चुके हैं कि मेरा खुदा मेरी जरूरतों को जानता है। हालेलुया। सब बोले, मेरा खुदा मेरी जरूरतों को जानता है। कौन जानता है? कोई वज़ीर आज़म, कोई सदर, कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई खादम, कोई भी नहीं जानता। सब मुफाद परस्ती है, लेकिन खुदा आपकी जरूरतों को जानता है। इसलिए उसके साथ चलने का इरादा कर ले, बस वो आपको सरफराज करेगा। क्या लिखा है? मेरी जरूरत के मुताबिक मुझे क्या कर, रोजी दे। आज से आपने भी यही दुआ करनी है, खुदावंद मेरी जरूरत के मुताबिक मुझे रोजी दे। आमीन। तो आप चेक कीजिएगा, खुदा ऐसा कर रहा है, लेकिन प्लीज आपको शुक्रगुजारी नहीं करने देना। वो आप कहता नहीं आज भी थोड़ी गई है, आज भी थोड़ी गई है। कितने लोग दिन में कितनी दफा खाना खाते हैं? 3 दफा। कितनी दफा आप खा सकते हैं? आपके खाने की भी एक हद है। अगर आप उस हद को क्रॉस करते हैं तो आप बीमार होते हैं। तो जब आपने 3 दफा खाना है तो खाना ही है आपने, यही आप खाते खाते इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे और कुछ आप साथ नहीं ले जाएंगे। तो फिर वक्त के साथ खुदा के साथ बढ़ते रहिएगा, जल्दबाजी ना कीजिएगा, काली ना अपने आप चिड़ियाओ, सब्र का दामन पकड़ो। बाइबल क्या कहती है? बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फिरौतनी से रहो तो वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। आमीन। क्या करेगा? सर बुलंद करेगा, सरफराज करेगा। आमीन। वक्त के साथ जब आप फिरौतनी के साथ यानी सब्र दिली के साथ
लिपटे रहेंगे, ना दाएं मुड़ेंगे ना बाएं मुड़ेंगे, तो खुदा भी अपने से का काम करेगा। क्योंकि दाएं बाएं आपको आवाजें आती हैं, चल तू इधर नू आ जा, तू उधर नू आ जा, की लभ्या तेनू? ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जिस खुदा ने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए कुर्बान करने से दरेक नहीं किया, इससे बड़ी क्या मोहब्बत हो सकती है, इससे बड़ी क्या वफादारी हो सकती है। आप इसी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते रहे तो आपकी शुक्रगुजारियां बढ़ती रहेंगी। आमीन। हर रोज कहें खुदा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हमेशा की जिंदगी दी है। क्या लिखा है? ऐसा ना हो कि मैं शेर होकर इनकार करूं और कहूं खुदावंद कौन है। ये देखें कैसी बात है। और ऐसा होता है, आप प्रैक्टिकल देख लें, जिनके पास पैसा आ जाता है उनकी नजरें बदल जाती हैं, उनके चलने का स्टाइल बदल जाता है, उनका मिलना जुलना अलग हो जाता है, भैन भरा और तो अलग हो जाते हैं, रिश्तेदार पड़ोसी मिलना वो उनको मिलना पसंद नहीं करता, क्योंकि अब उसके पास माल जो आ गया। लेकिन खुदा दा बंदा कहता है तू मैंने उन्ना को दे ताकि मैं सब ना मिलता ही रहा। आमीन। मैनू मेरी हद च रखी, क्योंकि खुदा तुहाड़ियां हद्दां नूं जानदा है। जिवें असीं अपने बच्चों दी हद्दां जानने ना कि इनू 10 रुपए की जरूरत है तो 100 दिता तो इन्हें करना की। कदी तुसी अपने बच्चे नू 10 दिते 100 फड़ाया? दसो जी। छोटे बच्चे को आप कितने पैसे देते हैं? वो आपसे 100 की दरखास्त करके आप नहीं देंगे, आप कितने देंगे? उसको 10 रुपीज देंगे। ऐसे ही जब वो उस लेवल पे आएगा आप 100 नहीं बल्कि 200 दिया करेंगे। तो खुदा भी जब आप उस लेवल पे आते हैं फिर वो इसी तरह आपकी बरकतें बढ़ाता रहता है। हालेलुया। आपकी डाइट, आपकी खुराक, एवरीथिंग खुदा बढ़ाता रहता है। पहले थोड़ी होती फिर ज्यादा ज्यादा ज्यादा। तो फिर किस चीज के परेशानी? क्यों हम बेताब हो चुके हैं, इतने हमाकत की जिंदगी गुजारे। उसने कहा है हमाकत को मुझसे दूर कर। बतालत का मतलब हमाकत से मुझे बचाना। मैं ऐसी हमाकत में ना जाऊं कि मैं सिर्फ दौलत का ठीक करने दे चक्रां च पिया रहां तो मेरे हाथ कुछ भी ना आवे। बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने बताया एक शख्स की बहुत सारी फसल हुई तो उसने क्या कहा? उसने अपनी पुरानी कोठियां गिरा कर नई बनाकर उनमें अनाज भर दिया और ये नारा लगाया, ऐ मेरी जान खा, तेरे पास बहुत सारे बरसों के लिए है। यीशु ने क्या कहा? ऐ अहमद, आज तुझसे तेरी जान ले ली जाएगी तो ये किस काम के आएगा? आप खुदा का शुक्रिया अदा करें। जैसा भी उसने आपको रखा हुआ है वो वक्त के साथ आपको बढ़ाएगा। आखिरी बात मैं करने वाला बात, एक बच्चे को आप सबसे पहले कौन सी क्लास में एडमिशन देते हैं? प्ले नर्सरी कि डायरेक्ट मैट्रिक च लै जाते हैं? हाँ जी दसो। पहले उसको प्ले में लेके जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, साल ब साल वो बच्चा बढ़ता है। और इसी तरह खुदा भी स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ देता रहता है। एकदम जो कुछ आपको मिल जाता है आपको उसकी कदर नहीं रहती, आप खुदा से दूर हो जाते हैं। खुदा आपको अपने आप से दूर नहीं रखना चाहता। और खुदा का बंदा सुलेमान भी खुदा से अपने आप को दूर नहीं रखना चाहता। इसलिए वो कहता है मेरी हद में ही खुदा रख मैनू, ताकि मैं इनकार करूं और कहूं खुदावंद कौन है। और देंदा सब कुछ खुदा ही जो मिल जाता है तो फिर इस कहते मैं कमाया ही। अगर वो ताकत ना देता, सेहत ना देता, कारोबार ना देता, थानू जिंदगी ना देता, तुसी ओदे बगैर की कमा लेना सी। ज़बूर में क्या लिखा है? जब तक यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है? अबस है। आप हर रोज कहिएगा खुदा मैं घटूं और तू बढ़े। ये आपके अल्फाज इस पूरे साल होने चाहिए। तो क्या लिखा है? दूसरी बात है, या मुबादा मोहताज होकर चोरी करूं और अपने खुदा के नाम की तकफीर करूं। आमीन।
हालेलुया। दोनों दरखास्तों का तल्लक खुदा के साथ है। वो खुदा से अलहदा नहीं होना चाहता, वो खुदा के साथ लिपटा रहना चाहता है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं बहुत कुछ लेकर चला गया तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जब मैं खुदा के साथ रहूंगा तो हमेशा खाता रहूंगा। आमीन। अगर आप भी चाहते पूरा साल आसूदा रहे तो फिर खुदा के साथ चलते रहिएगा। वो आपको हर रोज नई नई बरकत से असेर और सुदा करता है। ज़बूर 103 में क्या लिखा है? वो तुम्हें उम्र भर, कितना? उम्र भर अच्छी अच्छी नेमतों से असेर और सुदा करता है। आमीन। आमीन। फिर ढिल्ला सौगे। आमीन। कितने लोगों ने ये आयत सुनी है कि मैं क्या हूं कि मैं तुम्हें, सारे बोले, मैं तुम्हें उम्र भर अच्छी अच्छी नेमतों से असेर और असूदा रखता हूं। कितनी एज तक? सारी उम्र। ਵੇਲ ਲਿਓ ਤੂੰ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ शायद ਮੈਨੂੰ कुछ ना मिले। नो, बाइबल क्या कहती है? खुदा ने कहा मैंने तुम्हें तुम्हारी मां के पेट से गोद ले लिया है और मैं ही तुम्हारे सर सफेद होने तक उठाए फिरूंगा। आमीन। हालेलुया। कब तक उठाए फिरूंगा? जब तक तू बूढ़ा हो जाएगा तब तक मैं तेरा ही खुदा। भुल ना तू भुल गया, मैं खुदा कहना मैं नहीं भुलिया। उन्हें रिमाइंड करवाया ईसाई किताब में, मैं नहीं भुलिया, तू भुल गया। मैं अगर ले लिया तो मैं अपने वादे ते कायम हूं। आए इस खुदा के लिए शुक्रगुजारी करें। खुदा आपको और मुझे इस खुदा कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।